یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. یکم دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. امریکی صدر نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کی درخواستوں پر پابندی طویل عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے. We don't want those people. We have enough problems. We don't want those people. Is that a year, 2 years? No time limit. And then But it could be a long time. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز رہی، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. We continue to be realistic about how difficult this is, but optimistic, particularly given the fact that as we've made progress, I think there is a shared vision here that this is not just about ending the war, which is very important. It is about securing Ukraine's future. پاکستان میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں دیری اور قیاس آرائیاں، کیا کہیں کوئی مسئلہ ہے؟ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں پولیس پر حملوں میں 3 اہلکار ہلاک، جوابی کارروائی میں 5 عسکریت پسند مارے گئے. گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ صوبے میں گورنر راج کی کوئی بات نہیں ہوئی. سر آپ کدھر آئے ہیں مجھے تو نہیں پتا. سر میڈیا پہ آ گئے 3 نام بتائے گئے. تو اگر میڈیا گورنر سے لگائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ. نہیں، اگر آپ کو ہٹانے کا کچھ ہوا کیا گا تو کیا وہ ہوں گے آپ کے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں. ملیے غزہ کے بحران کو کاروبار میں بدلنے والے نوجوان سے جو ٹیپ کے بغیر نوٹ مرمت کر لیتے ہیں. بھارت میں خاتون نے بوائے فرینڈ کے قتل کے بعد اس سے شادی کیسے کی؟ مارنے والے جیت کر بھی ہار گئے. اور ہارنے والا مر کر بھی جیت گیا. اور حیدرآباد کے ہسپتال میں میوزک سے ذہنی امراض کا علاج. میں دنیا بلا دوں گا تیری یاد میں. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ پناہ گزینوں کی درخواستوں پر طویل عرصے تک پابندی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے. امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان ایک افغان شہری کی جانب سے مبینہ طور پر وائٹ ہاؤس کے نزدیک نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے. اس واقعے میں ایک اہلکار ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے. بین الاقوامی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کے روز جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کب تک عائد رہے گی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس میں کوئی وقت کی حد نہیں ہے. I think a long time. can you give any We kind don't of want time? them. What's We a don't long want those time? people. We have enough problems. We don't want those people. Is that a year, 2 years? No time limit. And then But it could be a long time. دوسری جانب خبر رساں ادارے روئٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت نے دنیا بھر میں اپنے تمام سفارتکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ افغان شہریوں کو ویزے جاری کرنا بند کر دیں. اس فیصلے کے نتیجے میں افغان شہریوں کے لیے جاری خصوصی امیگریشن ویزا یعنی SIV پروگرام معطل ہو گیا ہے. یہ پروگرام ان افغان باشندوں کے لیے تھا جنہوں نے 20 سال تک امریکہ کی مدد کی تھی. روئٹرز نے امریکی محکمہ خارجہ کے اندرونی میمو کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کے روز تمام امریکی سفارتی مشنوں کو بھیجے گئے پیغام میں کونسلر افسران کو افغان شہریوں کی جانب سے کسی بھی تارکین وطن یا نان امیگرنٹ ویزا کی درخواستوں کو مسترد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکام کے ساتھ روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے پر بات چیت نتیجہ خیز رہی، لیکن اس پر ابھی مزید کام کرنا باقی ہے. اتوار کے روز فلوریڈا میں ہونے والے مذاکرات میں یوکرین کے وفد کی قیادت قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری رستم امروف کر رہے تھے، جو یوکرین کے نئے چیف مذاکرات کار ہیں. ملاقات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی شامل تھے.
विटकोफ अगले हफ्ते रूसी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए मास्को का दौरा करेंगे। यूक्रेन के सदर के आला मुज़ाकरातकार आंद्री यरमाक हाल ही में अपने घर पर इंसदाद बदउनवानी के छापे के बाद मुस्तफ़ी हो गए थे, जिसके बाद उनकी जगह उमरूफ को लाया गया है। अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान होने वाली ये मुलाकात 2 हफ्तों से जारी सफारती सरगर्मियों में ताज़ा तरीन कदम है। ये कोशिशें 28 नुकाती अमरीकी अमन मंसूबे के अफशा होने के बाद शुरू हुई थी। यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने इस मुजव्विज़ा मंसूबे में रूस की हिमायत पर तशवीश का इजहार किया था। मुज़ाकरात के दौरान मार्को रूबियो का कहना था कि ये बातचीत सिर्फ लड़ाई ख़त्म करने की शराइत के बारे में नहीं है, ये उन शराइत के बारे में भी है जो यूक्रेन की तवील मुद्दती खुशहाली की बुनियाद बनेगी। मेरे ख्याल में हमने आज इस पर काम किया है, लेकिन अभी मजीद काम करना बाकी है। We continue to be realistic about how difficult this is, but optimistic, particularly given the fact that as we've made progress, I think there is a shared vision here that this is not just about ending the war, which is very important. It is about securing Ukraine's future, a future that we hope will be more prosperous than it's ever been. We discussed all the important matters that are important for Ukraine, for Ukrainian people, and the US was super supportive. We already had a successful meeting in Geneva, and today we continued this success. उन्होंने यूक्रेनी वफ्द से ये भी कहा कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन को खुद मुख्तार, आज़ाद और खुशहाल बनाना है। यूक्रेनी वफ्द के सरबराह उमरूफ ने भी इतवार के रोज़ होने वाली बातचीत को नतीजा खेज और कामयाब करार दिया है। 27 नवंबर को जब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान की अफवाज के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे से रिटायर हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस ओहदे के मुतबादिल के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो हाल ही में एक आइनी तरमीम के ज़रिए मुतारिफ करवाया गया था। ताहम 29 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF की तकर्री का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका, जिसने हकूमती अमल में ताख़ीर और इसके आइनी मुज़मिरात से मुतल्लिक़ कई सवालात को जन्म दिया है। ख्याल रहे CDF का ये नया मनसब 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में आर्मी एक्ट में की गई तब्दीलियों के बाद तख्लीक किया गया था, जिसने 27 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की रिटायरमेंट के बाद उस ओहदे की जगह ले ली है। इसके तहत बताया गया था कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया और इजाफी ओहदा सौंपा जाएगा, बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तब्दीली की जाएगी। 29 नवंबर को मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 3 साला मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई थी। बाज़ कानूनी माहिरीन व तज्ज़ियाकारों का मानना है कि नए नोटिफिकेशन के बगैर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत आज खुद ख़त्म तसव्वुर की जा सकती है। ताहम 2024 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम करके सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई थी। इसमें की गई तरमीम का मतलब ये है कि नई तरमीम को ऐसे समझा जाएगा जैसे ये हमेशा से कानून में मौजूद थी। नतीजतन आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के लिए अब किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रही है। ताहम सोशल और मुल्की मीडिया पर जारी सवालात के बाद वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्यास आराइयों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वाज़ेह किया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF की तैनाती का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक अमल शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं और नए CDF के बारे में नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में किसी क्यास आराई की कोई गुंजाइश नहीं है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और आज रात वतन वापस पहुँचेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ की वजाहत ने इन क्यास आराइयों को ख़त्म करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया है। वज़ीर दिफा की वजाहत के बावजूद कानूनी माहिरीन और तज्ज़ियाकार इस बात पर तकरीबन मुत्तफ़िक हैं कि चूँकि CDF का ओहदा एक नया मनसब है और कोई पुरानी पोस्ट नहीं, इसलिए इसकी तकर्री के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आया है। साफ़ी सलमान मसूद कहते हैं कि वज़ीर दिफा की ये ट्वीट कि लोग CDF नोटिफिकेशन पर क्यास आराइयाँ बंद करें कुछ ताख़ीर से आई है।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि हुकूमत की जानिब से इतनी खामोशी ने पहले ही तरह तरह के अंदाज़ों और साजिशी नज़रियात को जन्म दे दिया है। एक अहम मामले पर लोगों को बात करने पर डांटने से बेहतर हिकमत अमली ये होती कि इब्तिदा ही में सामने आकर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया जाता। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस पर हमलों में 3 पुलिस एहलकार हलाक और 5 जख्मी हुए हैं, जबकि कुरम में पुलिस मुकाबले में 5 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। इसके अलावा बन्नू और डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की इतलात हैं, लेकिन अब तक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR की जानिब से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बन्नू में आज सुबह एक पुलिस एहलकार को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। थाना कैंट की हदूद में मुसल्लह अफराद ने कांस्टेबल मोहम्मद तारिक को उस वक्त फायरिंग करके हलाक किया जब वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस वाक़े के बाद इलाके में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और बन्नू मेरनशाह रोड ब्लॉक कर दिया। बन्नू में चंद रोज़ पहले एक पुलिस थाने पर हमले के बाद जब मुसल्लह अफराद वापस जा रहे थे तो हाथी खेल कबीले के लोगों ने उन्हें घेरे में ले लिया था, जहां बाद में पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई थी। रीजनल पुलिस अफसर सज्जाद खान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया था, इस इलाके में अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में 3 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया गया है, जबकि कई के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कुरम में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में हलाक होने वाले पुलिस के 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ज़िला कुरम के पुलिस अफसर मलिक हबीब ने BBC को बताया कि सेंट्रल कुरम में चनारक पुलिस चेक पोस्ट पर अस्करियत पसंदों के हमले में पुलिस एहलकार वाहिद खान और फजलुर रहमान जान हलाक हो गए थे। DPO कुरम ने बताया कि अस्करियत पसंदों के चेक पोस्ट पर हमले के बाद एहलकारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 4 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं, जबकि 6 के जख्मी होने की इतला है। ISPR के मुताबिक रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदों के खिलाफ 12,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में किए गए ऑपरेशन की तादाद 67,000 से ज़ायद है। खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदों की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज़ में किए जाने वाले बड़े हमलों में पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला, बन्नू में अमन कमेटी पर हमला, 10 नवंबर को जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर हमला, 24 अक्टूबर को कुरम में IED धमाका, 10 अक्टूबर को सड़क किनारे धमाका करना शामिल हैं। इसके अलावा टारगेट किलिंग और अगवा के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वाज़े किया है कि सूबे में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से ना कोई मुशावरत हुई है और ना ही वज़ीर आज़म या पार्टी क़यादत से इस बारे में कोई बातचीत हुई है। मीडिया में गर्दिश करने वाली गवर्नर की तब्दीली की खबरों को भी उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है। पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं, 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो, क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर, मीडिया पे आ गए 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर्स लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से, क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वाज़े रहे कि वफाकी वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने गुज़िश्ता रोज़ इंदिया दिया था कि सूबे में 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है, जिसके बाद इस बहस में तेज़ी आई। ताहम सूबाई हुकूमत ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसी किसी कोशिश का सख्त रद्द अमल सामने आएगा। आइन के मुताबिक गवर्नर राज आर्टिकल 232 या 234 के तहत मखसूस हालात में लगाया जा सकता है, जिसमें सूबाई असेंबली या पार्लिमान से तौसीक ज़रूरी होती है। गवर्नर राज की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 6 माह तक हो सकती है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा रहा है, और अगर लगाया जा रहा है तो नया गवर्नर सिविलियन होगा या फौजी? जानते हैं अंदर की खबर रखने वाले साफ़ी मुजम्मिल सौर वर्दी से। लेकिन अजय अमीर अदर होती ANP से हैं तो मुझे नहीं लगता ANP को कोई गवर्नर ही दे। आफ्ताब शेरपाव की पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है, परवेज़ खट्टर पूरा इलेक्शन हार के हुए थे, JUI का कोई नाम है नहीं, किसी एक नाम पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय सियासतदानों का मुझे नहीं नज़र आता। और जब सियासतदानों का इत्तफाक़ राय ना हो तो फ़ौज की लॉटरी निकलती है। तो मुझे तो लगता है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गजूर जो हैं ये ज़्यादा बेहतर नाम हैं। अगर इनमें से कोई और भी आए तो मुझे तो एक जर्नैल गवर्नर वहाँ आता नज़र आ रहा है, सिविल गवर्नर की बजाय। गजा में जारी जंग और नकदी की शदीद किल्लत के दौरान नौजवान अबू अलून नोटों की मुरम्मत को रोज़गार बना चुके हैं। गजा में करेंसी नोटों की तरसील ख़त्म होने, बैंकों की तबाही और ATM के बंद होने के बाइस हर पुराना और फटा हुआ नोट भी कीमती हो चुका है।
इस वजह से गजा के नौजवानों में ये नया कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अबू अलून सादा औजारों, पेंसिल, रंग और गोंद की मदद से नोट बगैर टेप के काबिल इस्तेमाल बना देते हैं। वाज़ेह रहे कि गजा में लोग नकदी के लिए गैर रस्मी मनी डीलर्स को भारी कमीशन अदा करने पर मजबूर हैं, जबकि ई वॉलेट का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 80% आबादी बेरोज़गार और मुकम्मल गुर्बत में धकेल दी गई है। शदीद महंगाई के बायस बुनियादी खुराक भी कई ख़ानदानों की दस्तरस से बाहर है। मेरा बॉयफ्रेंड मर कर भी जीत गया और मेरे वालिदैन इसे मार कर भी हार गए। ये कहना है इंडियन रियासत महाराष्ट्र के शहर एंडेड की रिहायशी 21 साला आंचल मामिदवार का, जिन्होंने मुबैना तौर पर अपने अहले खाना के हाथों कत्ल होने वाले अपने बॉयफ्रेंड की लाश के साथ शादी करके उसी के घर पर रहने का अनोखा फैसला किया है। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। वाज़ेह रहे कि 20 साला शिक्षम और 21 साला आंचल के दरमियान 3 बरस से मरासम थे, ताहम आंचल के घर वाले इस ताल्लुक के सख्त मुखालिफ थे। शिक्षम के कत्ल के बाद आंचल ने यह फैसला किया कि अब वो शिक्षम के घर पर ही रहेंगी और इस दौरान शादी की चंद रिवायती रस्मों को भी अदा किया गया है। आंचल कहती हैं कि मेरे घर वालों ने इस वजह से इस रिश्ते की मुखालफत की क्योंकि हम दोनों मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे। आंचल ने मीडिया को बताया कि शिक्षम कुछ अरसा कबल जेल से रिहा हुआ था और इसके बाद इसे मेरे घर वालों की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही थीं। मुबैना तौर पर जुमेरात की शाम तकरीबन 5:45 बजे आंचल के घर वालों ने शिक्षम पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि आंचल के वालिद और भाइयों ने शिक्षम को गोली मारी और फिर इसे शदीद ज़रबे लगाकर हलाक कर दिया। आंचल ने कहा कि मेरे वालिद और मेरे भाई उसे मारकर भी हार गए हैं, जबकि शिक्षम मरकर भी जीत गया है क्योंकि हमारी मोहब्बत अभी तक जिंदा है। उनका कहना था कि मेरी गुज़िश्ता 3 बरस से शिक्षम के साथ दोस्ती थी। आंचल कहती हैं कि मेरे वालिद कहते थे कि तुम किसी और से बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन इससे बातचीत करना बंद करो। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। सामीन, जहां जहनी सेहत बेहतर बनाने के लिए अद्वियात और थेरेपी इस्तेमाल होती है, वहीं म्यूज़िक थेरेपी भी तेज़ी से मौसर तरीका साबित हो रही है। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के सरकाव सजी इंस्टीट्यूट में मौसीकी को बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मरीजों के रवैये, ज़हनी सुकून और बहाली में नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तरबियत याफ्ता माहिरीन मखसूस धुनों और ताल का इस्तेमाल करते हैं जो मरीजों में इज़्तिराब कम करने और तवज्जो बेहतर बनाने में मदद देती हैं। कई मरीजों के ख़ानदानों का कहना है कि म्यूज़िक थेरेपी से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़ेह मस्बत तब्दीली आई है। मज़ीद तफसील रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की इस रिपोर्ट में। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। हैदराबाद के सर काउजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री में शफा अब सिर्फ दवाओं में नहीं बल्कि सुरों में भी मिल रही है। यहाँ मौसीकी अब इलाज का हिस्सा है। म्यूज़िक हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, टेंशन में अगर होते हैं, लोग सिगरेटें पी रहे होते हैं, स्मोकिंग करते हैं टेंशन की वजह से, वो गलत है। उसकी जगह अगर वो स्मोकिंग के बजाय म्यूज़िक सुन लें तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बेहतर होगा। और मौसीकी की क्लास होती है हमारी, हर हफ्ते भी होती हैं और हफ्ते में 3 दफ़ा भी होती हैं। तैयारी करवाते हैं, बताते हैं कि भाई गाने में कौन सा सुर कहाँ से उठाना है, कौन सा सुर गिराना है, सारे गामा पादा नीसा कैसे पढ़ना है और कैसे गाना है, इसको बताया जाता है। ये इदारा 1865 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किया गया, जिसके लिए ज़मीन सेठ गुद्दूमल ने फराम की, जबकि तामीरात की जिम्मेदारी मुखैयर पारसी सेठ सर जहांगीर काउजिन ने उठाई। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नफ्सियाती अस्पताल है। मकामी तौर पर इसे गुद्दू बंदर मेंटल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान के चंद सरकारी इदारों में से एक है जहां बाकायदा म्यूजिकल थेरेपी शुरू की गई है। वो लोग जो बरसों से ज़हनी दबाव, बेचैनी और नफ्सियाती बीमारियों से लड़ रहे हैं, आज अपनी बहाली की तरफ एक नए रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। असल में ये अंदर के जो एहसासात होते हैं, मतलब किसी को दिल की बात नहीं बोल पाते हैं,
تو میوزک کے ذریعے وہ جو ہے گانے گانے کا شوق رکھتے ہیں. جو صوفی سانگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر پرفارم کرواتا ہوں. اس کے علاوہ کلچرل اور ایسے سانگ ان کو جو ہے گواتا ہوں جس سے ان کو خوشی ملے اور وہ جو ہے ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور بڑی خوشی کرتے ہیں پیشنٹ. اگر کوئی ایسے گھوٹکی کے سائڈ سے آیا تو ڈیفرنٹ جو سنگر مشہور ہیں ان کے گانے گاتے ہیں. کوئی ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں اپنے پاس جن کو ساز وغیرہ سیکھنے کا شوق بھی ہے اور میں نے ان کو تھوڑا تیار کیا ہے تو وہ بہت اچھا بجاتے ہیں ہمارے ساتھ تجربہ. ماہرین کہتے ہیں کہ موسیقی دماغ میں وہ حصے فعال کرتی ہے جو امید، سکون اور یادداشت سے جڑے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تھیریپی دواؤں کے ساتھ مل کر زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے. اچھا، ایسے تو کافی ساری ہیں، 8 سے 10 النیسز ہیں، لیکن ٹاپ موسٹ جو ہے وہ ڈپریشن ہے. اس کے بعد اینزائٹی ڈس آرڈرس ہیں. اس کے بعد شیزوفرینیا ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے. بائیپولر ڈس آرڈر بیسیکلی اس میں ڈپریشن اور تیزی ایک دم سے آ جاتی ہے، تو اس کو بیچ میں رکھنے کے لیے، معتدل رکھنے کے لیے، مزاج میں تیزی سے تبدیلی کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اس میں بہت بڑا رول ہے. اس میں جو برین میں پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے ڈوپامین، سیروٹونن، نور ایپینیفرین، یہ 3 نیورو ٹرانسمیٹر ہیں جو برسوں سے اسٹڈی ہو رہے ہیں اور انہی میں گڑبڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں تبدیلی آتی ہے، سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے. کچھ لوگوں کو کانوں میں آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں، وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو میوزک جو ہے ان کو کام ڈاؤن کرتا ہے، تینوں کا جو نیورو ٹرانسمیٹر کا لیول ہے اس کو بیلنس کر دیتا ہے. پاکستان میڈیکل سائنس جرنل کے مطابق پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد کو نفسیاتی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، لیکن سہولیات کا فقدان ہے. سر کاؤزی انسٹیٹیوٹ میں بھی ذہنی امراض کے لیے سہولیات کم ہوتی جا رہی ہیں. یہاں پہ فریکوینٹلی جو ہے وہ فن اور آرٹ کے حوالے سے ایک اسٹیج ڈراماز منعقد ہوتے تھے. ہمارے ریکورڈ پیشنٹس جو ہے اس میں پارٹ پلے کرتے تھے. تو یہ جو اپنا اسٹیج شوز کی ویرانی ہے، یہ اوور آل جو ڈراماز کا یہ فلاپ ہوا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جو یہ فیلڈ جو ہے منظر سے تھوڑی غائب ہوتی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بھی اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سلونیس آ گئی ہے. یہ تھیریپی محض موسیقی نہیں، یہ امید بھی ہے، بشرطے اگر دلوں کو چھونے والے سر چھیڑے جائیں. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.